Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, and we welcome you for this session, and let us expect God on of us. सुप्रभात आप सभी को। और आज के सुबह की सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रभु से अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। Let us thank God for this new day and a fresh day, and then let us expect a great new grace and new strength of this day. और परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करें और परमेश्वर से उसकी नए अनुग्रह और नई सामर्थ की अपेक्षा करें। Today, let us turn to the book of Revelation, 4th chapter and verse 3. और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय उसका 3रा वचन। And then we will try to glean truth from this verse. और इस वचन से हम कुछ सच्चाई को देखने पाएंगे। Last week we have read this verse, and this week we will go little deeper into the verse. और कल हमने पिछले सप्ताह हमने इस वचन की ओर देखा, लेकिन आज हम थोड़े गहरे में इस वचन में जाएंगे। Yeah, verse 3 says, "And he that sat was looked upon like a jasper and sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, enslight unto an emerald." और तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। We cannot understand the word of God with our own mind and understanding. परमेश्वर के वचन को हम हमारे बुद्धि और समझ से नहीं समझ सकते। We need to ask the Holy Spirit to enlighten our mind that we may see the wondrous things out of His word. और हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे कि वो हमारे आंखों को प्रकाशित करे, ताकि हम उसके मन से, पवित्र आत्मा के मन से वचन को समझने पाए। So shall we close our eyes and look God in prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। Father, we thank you for this day. स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। Thank you for a new day and a fresh day, Lord. और आज के ताजगी भरे और सुंदर नए दिन के लिए धन्यवाद। We pray that you may continue to lead us throughout this day, and we know that there is a special grace awaiting for us for this day. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज पूरे दिन भर तू हमें लिए चलो, और हम जानते हैं प्रभु कि आज के इस नए और ताजगी भरे दिन में प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमारे लिए है। As we have come into your presence once again, continue to speak to us, energize us, and then equip us, and then open our eyes that we may see wondrous things out of your word. प्रभु जब हम तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हमें उत्साहित कर प्रभु जी, हमें तू प्रशिक्षण दे खुदावन, ताकि हम तेरे वचन में परमेश्वर पिता आगे बढ़ सके। May your grace continue to be upon each of us, those who are hearing also, and let your grace continue to give them victory over every struggle which they have. और प्रभु जी तेरा अनुग्रह प्रभु बहुत आयत से तेरे लोगों पर हो, और जिन परेशानियों का सामना, जिस संघर्ष को वो कर रहे प्रभु, उसके ऊपर विजय पाने पाए। Continue to glorify your name and continue to speak to us. In Jesus' name we offer this prayer, our Father. लगातार प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, लगातार तू हमसे बातचीत करे हमारे स्वर्गीय पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So verse 3 explains and describes the Lord. और तीसरा वचन जो है वह प्रभु के बारे में वर्णन करता है। God cannot be described with the human terms. और मनुष्य के जैसे परमेश्वर का वर्णन हम नहीं कर सकते।
And then God cannot be compared with any form of humanity. और मनुष्य से हम परमेश्वर की कतई तुलना नहीं कर सकते। That is the reason here there are 3 stones taken, and then all are precious, indescribable, and very costly, and then very highly costly. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर की तुलना उन उच्च पदार्थों से की गई है यहाँ पे, जिसका कोई मोल नहीं है। If we read verse 3, it says, and he that sat was looked upon like a jasper. और जैसे हम इस तीसरे वचन को पढ़ते हैं जिसमें ऐसा लिखा है, जो उस पर बैठा है वह यशब जैसा दिखाई पड़ता है। Yeah, in verse 2 we have read about throne, and in verse 3 we read about the one who is sitting on the throne. और दूसरे वचन में हमने सिंहासन के बारे में पढ़ा, और तीसरे वचन में जो सिंहासन पर बैठा है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। So he is compared as a jasper in the first stanza. और पहले पड़ाव में उसके लिए वो यशब जैसा है ऐसा दर्शाया गया है। So what is this jasper? ये यशब है क्या? It is a gem or it is a precious stone. ये एक कीमती पत्थर है, and it is in the white color or crystal, very crystal color. और ये बहुत ही शुभ्र श्वेत जैसा है। This speaks about the holiness of God. ये परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। Our God is not ordinary God, but he is a holy God. हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, लेकिन वह पवित्र परमेश्वर है। Last time we have seen that he is holy in his word, he is also holy in his works. और पिछली बार हमने देखा कि वह अपने शब्दों में भी, अपने वचनों में पवित्र है और अपने कार्यों में भी पवित्र है। So the stone that is jasper is definitely showing us that God is holy, and our God is definitely expecting holiness from us. और ये शब्द बड़े ही निश्चित रीति से हमें स्पष्ट कर देता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह हमसे भी पवित्रता की अपेक्षा करता है। We have seen last time from 1 Peter, 1st chapter, verse 14, 15, and 16, that our God is holy. That is why he is expecting us to be holy. और पिछली बार हमने पहला पत्रस उसके अध्याय 1, 14, 15 और 16 वचन के द्वारा हमने देखा कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे क्यों पवित्रता की अपेक्षा करता है। Then second stone we are seeing is sardine stone. और दूसरा पत्थर जो हम देखते हैं वो है माणिक्य पत्थर। What is this sardine stone? This speaks about justice of God, and this speaks about judgment of God. और ये माणिक्य किसको दर्शाता है? ये माणिक्य परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। No, God cannot keep quiet when he sees sin. परमेश्वर चुप नहीं बैठता जब वह पाप को देखता है। When he sees injustice, he will definitely judge it. और जब वो उसको न्याय के तरीके से देखता है तो निश्चित ही वो उस पर अपना न्याय प्रकट करता है। In this world, we face at every juncture injustice, and then there is no justice at all anywhere. और इस संसार में हम जो है अन्याय
का सामना कर रहे हैं और इस संसार में हमको कहीं भी न्याय नहीं दिखता। When we face injustice, we cry unto God, God, when you are going to bring justice into the world? और जब हम अन्याय का सामना कर रहे होते हैं तब हम परमेश्वर से पुकार के कहते हैं कि प्रभु क्यों इस संसार में यह इतना अन्याय बढ़ रहा है। Is there any justice? Is there any way out for injustice? प्रभु इस अन्याय से बाहर निकलने का कोई पर्याय है क्या? इससे निकलने के लिए कोई रास्ता है क्या? हम ऐसा प्रभु से पूछते हैं। Day by day, poor are becoming poor, rich are becoming richer. और दिन प्रतिदिन गरीब गरीब होते चले जा रहा है और अमीर अमीर होते चले जा रहा है। Day by day, weak people are trampled, and only those who have might, they are coming up and they try to suppress the weak. दिन प्रतिदिन कमजोर और कुचला जा रहा है और जो सामर्थ्यवान है, जो बलशाली है, वह कमजोरों को दिन प्रतिदिन कुचल रहे हैं। So the Lord who is looking at all these things definitely will not keep quiet. He will judge one day the whole universe of their injustice. और प्रभु जो ये सब देख रहा है वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। वह एक दिन अन्याय के लिए अवश्य न्याय करेगा इस संसार में। You face injustice when someone deceives you of your money, or when someone deceives you of your situation, definitely your heart is squeezed and you do not know what to do. We have to leave it to the hands of God because He is going to bring the justice. और जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आपका पैसा चुराया जाता है, उस समय में आपके साथ बड़ा अन्याय होता है और उस समय में हम हमेशा एक न्याय की अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में न्याय को लेकर आए। Lord, how long we have to face this might be our cry. और हमारी पुकार ये हो सकती है कि प्रभु कब तक मैं इस पीड़ा में रहूं। But definitely the Lord who is seeing will bring justice. निश्चित ही जो परमेश्वर इसको देख रहा है वो इसमें न्याय को लेकर आएगा। So sardine stone speaks about justice of God and then judgment of God. और इसीलिए माणिक्य पत्थर परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। If we turn to the book of Ecclesiastes, यदि आप समुपदेशक की पुस्तक मेरे साथ खोलें, there the wise man is saying about judgment of God. और वहां पे बुद्धिमान परमेश्वर के न्याय के विषय में बात करता है। Shall we turn to Ecclesiastes? हम निकाले समुपदेशक, Maybe the last chapter, 12th chapter. उसका 12वां अध्याय। It says in verse 14. और वचन 14 में। Ecclesiastes 12th chapter verse 14. समुपदेशक अध्याय 12 पद 14। For God shall bring every work into judgment. क्योंकि परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा। With every secret thing, whether it is good or whether it is evil. सभी गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी। So God brings everything into light, whether you have done or I have done in secret, and we may be in pride saying nobody knows, I'm secretly doing everything. और परमेश्वर जो गुप्त में किए गए कामों को, चाहे वो बुरे हो या भले हो, उसको प्रकाश में लेकर आएगा। हम कह सकते हैं कि मैं तो उसको गुप्त में कर रहा हूँ, उसे कोई नहीं देख रहा है। Man may not
see what you are doing. मनुष्य इसे ना देख सके जो आप कर रहे हैं। In the family, we may do it secretly without knowing to each other. और परिवार में हम उसको गुप्त में कर रहे हो सकते हैं जिसे कोई नहीं देख सक रहा है। When you are doing it secretly, definitely God, the one who sees us, is looking at us. जब हम गुप्त उस कामों को कर रहे होते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर हमारी ओर देख रहा होता है। He will bring everything into judgment. वो सब कुछ न्याय के समय में लेकर आएगा। Let's turn to the book of Matthew, Gospel according to Matthew. इस समय में मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे। It says in 10th chapter, अध्याय 10 में verse 28. उसका 28 वचन। Matthew 10:28. मत्ती 10 उसका 28 वचन। It says, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। So God is able to put us in hell and then punish us and bring judgment to anything. और परमेश्वर जो है वह नरक में डालने वाला परमेश्वर है और वो सारी बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। Let's turn to Matthew 12th chapter. मत्ती उसका 12 अध्याय निकालें and see verse 36. और उसका वचन 36 देखें। It says, but I say unto you, और मैं तुमसे कहता हूँ that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। So on the day of judgment, every work will be brought into judgment. At the same time, every word or idle word which we speak. न्याय के समय में जो काम हम कर रहे हैं वो भी प्रकट रूप में सामने में आएंगे और वो जो शब्द, वो निकम्मे शब्द जो हम बोलते हैं वो भी प्रकट रूप में न्याय के समय में सामने आएंगे। So God is definitely particular about every work which we do and then every word which we speak. परमेश्वर जो हम काम करते हैं और जो हम शब्द बोलते हैं उसको भली भांति जानता है। There are people who deceive in words and then playing with words and then their lifestyle is also terribly different. और कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जो शब्द मात्रों से वह लोगों को धोखा देते हैं, शब्दों से ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनका जीवन बड़ा ही भयानक तरीके का होता है। In the world we see that lot of play of words. और संसार में हम देखते हैं कि शब्दों का खेल। But God keeps the record of everything. लेकिन परमेश्वर हर एक बात का लेखा रखता है। Every word is recorded. हर एक शब्द का स्मरण वहां पर है। We may have to give account of every idle word which we speak. और जो कुछ निकम्मी बातें हम बोलते हैं उसका लेखा हमें देना होगा। That is why in Revelation we read that there was a book and then there were also books opened. और प्रकाशित वाक्य में इसलिए हम देखते हैं कि एक किताब है और किताबें हैं जो खोली गई थी। And then according to the books which were or what is written in the books is each person judged. और जो कुछ भी उन किताबों में लिखा था उसके अनुसार हर एक व्यक्ति का न्याय हुआ। Every person will be judged and there will not be sparing, there will not be mercy those days.
और उन दिनों में हर एक व्यक्ति का न्याय होगा और किसी पर भी दया नहीं की जाएगी। And then everything we have to give account. और हर बात का हमें लेखा देना होगा। And then God brings everything into the judgment. और परमेश्वर न्याय के समय में सब बातों को प्रकट रूप से लेकर आएगा। And we need to be very careful in our lives. इसलिए हमारे जीवन में हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। If we turn to the book of Revelation, chapter 20, यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 निकाले, verse 4, उसका वचन 4, it says, I saw thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. और चौथा वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के 7,000 वर्ष तक राज्य करते रहे। One more verse from the same book, 20th chapter, and then verse 11. और फिर एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 11 वचन से हम देखते हैं। It says, and I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So verse 11. 21:11. 20, chapter 20, verse 11. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। That is the day of judgment, where the earth and the heaven will tremble at God. और न्याय के दिन उस समय में पृथ्वी और आकाश दोनों उसके सामने में कांपेंगे। Heaven and earth cannot be spared, and then everyone in the world will be definitely brought to judgment. और न्याय के समय में पृथ्वी और आकाश को भी छोड़ा नहीं जाएगा और हर एक व्यक्ति निश्चित रूप से उस न्याय में होगा। In verse chapter 22 of Revelation and verse 12, और अध्याय 22 उसका 12 वचन ऐसा करता है प्रकाशित वाक्य का। it says, and behold, I come quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Why the Lord is coming quickly? क्यों परमेश्वर शीघ्र आने वाला है? It says, and behold, I come quickly. वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। You know, once one pastor was preaching from the pulpit, behold, I come quickly, from the same verse. और एक दिन एक पासवान जो है इसी अध्याय में से इस वचन को प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। From pulpit he was so emotional, and then he started speaking it, and then he became so emotional. From pulpit he fell down. और पुलपिट में वो इतना भावुक हो गया था जब वो इस वचन को पढ़ रहा था। इसको पढ़ते पढ़ते वो नीचे गिर गया। Because in our church where I was brought up, pulpit used to be in a higher plane, and then a very big pulpit, and then this man fell down from the pulpit. और ऐसा है कि जहाँ पे मेरी आत्मिक परवरिश हुई
उस कलीसिया में जो पुलपिट रखने का स्थान है थोड़ा सा ऊंचा है, तो और पुलपिट भी ऊंचा था, वो इस बात को बोलते बोलते वो पुलपिट के पीछे गिर गया। And then he fell from the front side, and then he fell on a old lady who was sitting below the pulpit. और वो क्या बोलेंगे, उस बुजुर्ग स्त्री के ऊपर में गिर गया, जो पुलपिट के बाजू में बैठी हुई थी। And then he said, "Sorry, I became very emotional and I fell down upon you." और उन्होंने माफी मांगी उन स्त्री से और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं बहुत ही भावुक हो गया था, इसलिए मैं गिर गया। And then the old lady said, "No, no, 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 it is not your mistake, it is my mistake, because you said, 'Behold, I am coming quickly,' and then I was not ready." और उस बुजुर्ग स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि जब आपने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उस समय में मैं तैयार नहीं थी। And then she had a duplicate teeth. और उसके जो दांत थे वो नकली थे। The teeth, as soon as this man fell down, the teeth also went and fell other side. और जैसे जैसे ये व्यक्ति उसके ऊपर गिरा, उसके जो दांत थे वो कहीं दूसरी जगह जाके गिरे। So she went and picked up again those teeth and started fixing it. और वो गई, उसने उस नकली दांत को उठाया और वो फिर से अपने दांत में लगाने लगी, अपने मुंह में लगाने लगी। So it says here, "Behold, I come quickly, और यहाँ पे जब वो कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." और प्रतिफल मेरे पास है, एक एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। Why Jesus wants to come once again? यीशु फिर क्यों आने वाला है? Once he came, and he came as a shepherd, and he died for you and me. जब पहली मर्तबा वो आया तो वो चरवाहे के रूप में आया और उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण दिए। If we turn to the John's Gospel, यदि आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले, 10th chapter, अध्याय 10 and then verse 11. और उसका वचन 11। John's Gospel, 10th chapter, verse 11. अध्याय 10 वचन 11। It says, "I am the good shepherd. वो कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ, The good shepherd giveth his life for the sheep." अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। So first time when Jesus came into this world, पहली बार जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, he came as a shepherd, एक चरवाहे के रूप में आया, and then he gave his life for you and me. और उसने अपना प्राण आपके और मेरे लिए दे दिया। He died for you and me. वो आपके और मेरे लिए मारा गया। And then he rose again on third day. और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। But the second time he will not come as a shepherd. लेकिन दूसरी बार जब वह आएगा, वह चरवाहे के रूप में नहीं आएगा। He will come as the great judge. वह जब आएगा तब वो एक महान न्यायी के रूप में आएगा। He is definitely a God who will bring justice, and then he will bring judgment. जो वो परमेश्वर है जो निश्चित ही न्याय लाने वाला परमेश्वर है, और वो निश्चित ही न्याय को लेकर आएगा। Whoever you may be going through difficult times in this world. आप जो कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में आप बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो। People may be trying to take advantage of your life. और लोग हो सकता है कि आपके जीवन का गलत फायदा उठा रहे होंगे। People may be misusing your influence and misusing your life. हो सकता है कि आपके जीवन का जो प्रभाव है, आपके जीवन का वे गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे होंगे। But God, who sees the whole thing, will not keep quiet. He will bring justice one day.
लेकिन परमेश्वर जो सारी बातों को देख रहा है वो शांत नहीं बैठेगा, वो एक दिन निश्चित ही अपने न्याय को प्रकट करेगा। Everything will be brought into judgment. हर एक बात जो है न्याय आसन के सामने में प्रकट किया जाएगा। So you need to be encouraged, because you and I, as we go through difficult situations in this world, definitely the Lord who sees the whole thing will keep record of the whole thing, and then he will bring justice to you and me. हम जो ऐसी बड़ी परेशानियों से, तकलीफों से गुजर रहे हैं, हमें निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहित होने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर सारी बातों को देख रहा है और वो एक दिन न्याय को लेकर आएगा। It says in Revelation chapter 20 and verse 12. और वो कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके वचन 12 में, Revelation chapter 20 verse 12. वचन 12 अध्याय 20 का, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। So here we see that there is a book of life. यहाँ पे हम देखते हैं जीवन की पुस्तक। Those who accepted Christ as personal Savior, those who live according to God's standard, their names only will be returned. They will be written in the book of life. और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और प्रभु के अनुसार अपना जीवन जिया, केवल उन्हीं का ही नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। Then there are other books where each and every word is written, every work is recorded. और एक और पुस्तक वहां पे है जहां पे हर एक शब्दों का लिखा गया है, और साथ ही हर एक कार्यों का लेखा उसमें दर्ज है। Book of life is only one, but other books are many. It's in plural form in 12th verse. और जीवन की पुस्तक एक है, लेकिन जो किताबें हैं उसको अनेक वचन में यहाँ पे देखने को मिलता है। Whoever you may be, we need to see that God of justice and God of judgment is keeping a record of each and every work and every idle word which we speak. और आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उन सब निकम्मी शब्दों का लेखा और उन कार्यों का लेखा परमेश्वर ने अपने उन पुस्तक में दर्ज करके रखा है। Beloved, not only works and not only words, but even imaginations are brought into judgment. केवल हमारे काम या हमारे शब्द ही नहीं, उसके साथ साथ हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी न्याय के समय में प्रकट होगी। Because when he saw the earth in Genesis 6th chapter, जब उसने उत्पत्ति अध्याय 6 में संसार को देखा, पृथ्वी को देखा, he saw every imagination of man is corrupted. उसने ये देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है। Today also we see the same kind of people and same kind of Noah's days today, because every imagination is corrupt. और आज की परिस्थिति में भी हम नोहा के दिनों को देख सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। So whatever is happening is not ignored by God. He will definitely keep the record of our lives. और जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उसमें चुप नहीं बैठेगा, उसने निश्चित ही हर एक बातों का लेखा दर्ज करके रखा है हमारे जीवन में। In our ministry, we run the ashram, we run several other projects.
और हमारे आश्रम में हम जो है अनाथालय और साथ ही साथ कई अलग अलग प्रकल्प भी चलाते हैं। Everything is sponsored or supported by people like you. और आप ही के जैसे लोगों के द्वारा इन सब कार्यों को अनुदानित किया गया है। So whatever you sow in the kingdom of God, even in 1 rupee if you give to the kingdom of God, और जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, आप 1 रुपया भी परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, it's not just like that ignored, but every account is kept. और उनको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता, लेकिन उन सब का लेखा दर्ज किया गया है। And then he will give you reward. और फिर वो कहता है कि उसके बाद वो प्रतिफल देगा। Why he is not just ignoring anything, whatever you do? क्यों वो जो कुछ भी आप करते हैं उसको वो अनदेखा नहीं करता? In Matthew 10:42 we read, even if you give a cup of water, that is also remembered and that will be also rewarded. और जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 वचन में पढ़ते हैं कि यदि तुम किसी को 1 गिलास भी पानी दो, उसका भी लेखा दर्ज किया गया है और उसका भी प्रतिफल मिलेगा। And then in Philippians we read that in Philippians Paul is writing this epistle from the prison. और फिलिपियों की पत्री में पौलुस बंदी गृह से इस पत्री को लिख रहा है। And then when he is writing about giving also. और जब वो इसको लिख रहा है यहाँ पे, Let us turn to Philippians 4th chapter. आइए हम इस समय में 4थे अध्याय को निकालें फिलिपियों के। Philippians 4th chapter and let's read verse 18. अध्याय 4 उसका वचन 18 हम पढ़ेंगे। It says, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an order of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। You know, Epaphroditus was one of the prayer warrior in the team of Paul. और पौलुस के दल में इपफ्रुदीतुस जो था वह एक प्रार्थना योद्धा था। In Colossians we read that he is day and night striving in his prayer. और कुलिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यह व्यक्ति जो है रात दिन प्रार्थना में संघर्ष या परिश्रम किया करता था। Some people sleep while praying. कई लोग जो है प्रार्थना के समय में सोते हैं। Some people slumber while praying. कुछ लोग ऊँघते हैं प्रार्थना में। One person was asked to pray for the food which is ready. और किसी व्यक्ति से भोजन के लिए प्रार्थना करने को कहा गया था जो तैयार किया गया था। And then it was given to him. The plate was given to him. और उस व्यक्ति के हाथ में थाली दी गई। You know, in marriages they take big plates and then in that put food and then they brought it for prayer. और विवाह समारोह में अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ी सी थाल ली जाती है, उसमें खाने को अनेक व्यंजन को रखा जाता है और प्रार्थना करने के लिए दिया जाता है। This man started praying. ये व्यक्ति प्रार्थना करने लगा। He was so drunk that he could not control. He fell in the plate itself. और वो इतना पिया हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा वो उस प्लेट के ऊपर ही गिर गया। So baptism of biryani took place.
और ऐसा हुआ कि बिरयानी की बपतिस्मा उसका हो गया। So there are people who do not know what to pray when they are praying, and then they pray something else. और कुछ लोग जिन्हें प्रार्थना करना मालूम नहीं है, तो प्रार्थना के समय में वो कुछ और ही प्रार्थना कर जाते हैं। But here Epaphroditus was a man who really cried before God, strive before God, and then struggle in the presence of God. लेकिन जो इपफ्रिदुस जो था, वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रात दिन प्रार्थना किया करता था। Let's go to Colossians 4th chapter. कुलुसियो उसका अध्याय 4 में हम जाते हैं। Colossians 4th chapter verse 12. और अध्याय 4 उसका 12 वचन। It says, Epaphras, who is one of you, as servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that he may stand perfect and complete in all the will of God. 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, इपफ्रास जो तुम में से और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। Here, Epaphras is praying, and then he is laboring fervently for you in prayers. और इपफ्रास यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में वह तुम सबके लिए वह परिश्रम कर रहा है। So he is laboring. It is not ordinary prayer, but he is sweating in the presence of God as he is praying for the people. जब वो प्रार्थना में परिश्रम कर रहा है, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, वह परमेश्वर के दासों के लिए वहां पे वह बहुत ही संघर्ष के साथ प्रार्थना कर रहा है। Once there was a funeral service. एक अंत्योष्टि की सभा थी। One brother was asked to pray for the dead body and then commit it to the hands of God. और एक व्यक्ति से कहा गया कि इस प्रेत के लिए प्रार्थना किया जाए और उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपे। And then he started praying, Lord, thank you for the food which is served before me. और उसने ये प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद जो भोजन तूने मेरे सामने में परोसा। Dead body is in front of him, but he prays something else. उसके सामने में प्रेत रखी हुई थी, लेकिन वो किसी और बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। You know, terrible people, prayers, they pray terribly. प्रियो, भयानक लोग भयानक प्रार्थनाएं करते हैं। So our prayers need to be like Epaphras prayers, laboring and then praying and then bulldozing every vial of demon and bringing people, setting them free for God's glory. प्रियो, हमारी प्रार्थना इपफ्रास के समान होनी चाहिए, जिसमें हमें परिश्रम करना है, और हमारी प्रार्थना उस बुलडोजर के समान होनी चाहिए, जिससे हम शैतान के गढ़ों को धाकर परमेश्वर की महिमा को हम लेकर आ सके। Your prayer and our prayer need to bring heaven down to earth. आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आने वाली होने पाए। Some people will be praying, and by the time he will be praying, so much praying, and other people will sleep. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, प्रार्थना में इतने खो जाते हैं, प्रार्थना 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 वो करते रहते हैं, और उनकी प्रार्थना से बाकी लोग सो जाते हैं। They will be praying so long prayers, and then they do not know which prayer to offer when they come together. और वो प्रार्थना में इतने खो जाते हैं कि जब वो एक साथ आते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कैसी प्रार्थना की जानी चाहिए। In one church, one elder was asked to pray for the members and the church members. और एक कलीसिया में जो है एक व्यक्ति से कहा गया, विश्वासी से कहा गया
कि कमिटी के लोगों के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करो। And then the elder was praying, Lord, these people are terrible and very wicked people. तो ये प्राचीन व्यक्ति प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ये लोग बड़े ही दुष्ट और बड़े ही भयानक लोग हैं। So kill all the people. प्रभु इन सबको तू मार दे। So such wonderful prayers are there by different people, by elders also. तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, यहाँ तक कि प्राचीनों की भी द्वारा ऐसी प्रार्थना होती है। But here Epaphras is praying, लेकिन यहाँ पे इपफ्रास प्रार्थना कर रहा है, is laboring in prayer. वह प्रार्थना में परिश्रम कर रहा है। There was a man called Sadhu Sundar Singh. एक व्यक्ति जिनका नाम साधु सुंदर सिंह था, He used to pray in the cold nights in the jungles. वह ठंड के रातों में वह जंगल में प्रार्थना किया करते थे। When he is praying, he used to sweat and the whole body used to be full of sweat. और जब वो प्रार्थना में बैठते थे तो उनका पूरा शरीर पसीने से भर जाता था और पूरा पसीना निकलता था। इतनी परिश्रम वो प्रार्थना में करते थे। No, that was the laboring prayer. और इसी ही प्रार्थना में परिश्रम करना कहते हैं। And then there was another man called David Brainerd, and then he was praying in the nights, in the cold nights. और एक व्यक्ति जिनका नाम डेविड बर्नहार्ड है, यह रात की ठंड में प्रार्थना किया करते थे। He used to cry for the tribal people and then ask them to deliver them from their clutches of evil one. और वो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते थे ताकि परमेश्वर उन्हें जो है उस शैतान के बंधनों से छुड़ा सके। Whenever he prayed, his whole body was full of sweat, and the whole dress, whatever he was wearing, is soaked with sweat. जब वो प्रार्थना किया करते थे तो पूरे पसीने से भर जाते थे। जो कपड़ा वो पहनते थे वो पूर्ण रीति से पसीने से, पूर्ण रीति से निचोड़ ऐसा भर जाता था। That is the prayer of laboring and then pouring his soul in the presence of God. और इसी को ही मेरे प्रियो परिश्रम की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं। और ये इसका मतलब होता है कि पूरा प्राण प्रार्थना में झोंक दिया गया हो। Epaphras was a prayer warrior, was crying and praying for the people. इपफ्रास एक प्रार्थना योद्धा था जो प्रार्थना में लोगों के लिए आंसू बहाया करता था। But here in Philippians, ठीक है, यहाँ पे फिलिपियो में Epaphras was given few things to give it to Paul. इपफ्रुदिस को कुछ वस्तुएं दी गई जिसे उसे पौलुस को देना था। Then he brings very faithfully and gives everything to Paul. उसने उन वस्तुओं को बड़े विश्वास योग्यता के साथ लेकर पौलुस के हाथों में सौंप दिया। That is why in 18th verse he says, "But I have all and abound." इसलिए वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। I am full, having received of Epaphras the things which you have sent from you, an odor of a sweet smell. जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। Whatever you have sent जो कुछ भी तुमने भेजा is a sweet smelling flavor unto God. वह तो सुखदायक सुगंध है परमेश्वर की नजरों में। And then it is a sacrifice acceptable, well pleasing to God. और वह ग्रहण योग्य और बलिदान के योग्य और परमेश्वर को भावता हुआ है। So it becomes a sacrifice unto God, even if you give 1 rupee to the servants of God. यदि आप परमेश्वर के दासों को 1 रुपया भी देते हैं, वह एक बलिदान योग्य भेंट है। No, we need to be careful about duplicate servants of God. Nowadays, those who do the ministry, some of them do only for money. और हमें उन ऐसे दासों से भी बड़े सावधान रहना है
जो दिखावटी सेवकाई करते हैं वो आजकल केवल पैसों के लिए सेवकाई करते हैं। But beloved, when you do sincerely, a person who really has a pure life and a wonderful life, they only should be supported. और जो प्रभु के दास पवित्रता के साथ, बड़े शुद्धता के साथ सेवकाई को करते हैं, उन्हीं की सहायता होनी चाहिए। And when you give to them, it is a sacrifice unto God. और जब आप उनको अपनी भेंट देते हैं, वो परमेश्वर के नजरों में एक बलिदान योग्य भेंट होती है। When you give and when you offer sacrifice unto God, और जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, can God keep quiet? क्या परमेश्वर शांत बैठेगा क्या? No, verse 19 says. 19 वचन ऐसा कहता है। It says, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So God will not keep quiet, he will definitely give back. और परमेश्वर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, वह उसको तुम्हें पुनः लौटाएगा। If you give one part, God will give you 10 times to you, and then your needs are met. और यदि आप एक भाग देते हैं, परमेश्वर उसके जगह आपको 10 भागों में देगा और आपकी जो आवश्यकताएं है उसको वो निश्चित ही पूरी करेगा। Last month I was writing to one brother, are you from the Macedonian group? और एक व्यक्ति को जब मैं लिख रहा था, उनसे मैंने पूछा, क्या आप मकीदुनिया के दल में से आते हो क्या भाई? What is this Macedonian group? तो ये मकीदुनिया का दल है क्या? Let's go to 2 Corinthians. आप मेरे साथ दूसरी कुरिन्थियों में आइए, 8th chapter, अध्याय 8 verse 1. और उसका वचन 1। It says, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. अबे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। Let's go to verse 2. Very nice. I like it. Very nice. Very well. दूसरा वचन मुझे बहुत अधिक पसंद है। It says, how that in a great trial of affliction, that abundance of their joy and their deep poverty bounded unto the riches of their liberality. कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Many people say God should give us that we may give to him. कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हमें परमेश्वर को देना है ताकि वो हमें दे। I believe that is a pure hypocrisy. और मैं इस पे ये विश्वास करता हूं कि ये शुद्ध रीति से पाखंडपन है। Verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, the Macedonian Christians were in great affliction. मकीदुनिया की कलीसिया के लोग वो बड़े ही परीक्षा में थे, तकलीफ में थे। They were in great affliction, abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। When they were in deep poverty, they gave to God. जब वे भारी कंगालपन में थे, उस समय में उन्होंने परमेश्वर को दिया। When they were suffering and going through a tough time, they gave to God. जब वे क्लेश में से जा रहे थे, बड़ी परीक्षा में से गुजर रहे थे, उस समय में उन्होंने परमेश्वर को दिया। That is the true giving. यही है सही मायने में देना। Amy Carmichael, the great missionary to India, said like this.
और एमी कारमाइकल जो एक महान मिशनरी थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा, You can give to God without loving, but if you love God, you cannot keep quiet without giving to God. और यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर को देंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं तो आप अपना देना कभी बंद नहीं करेंगे। There are people who give to God without loving God. और कुछ लोग जो है परमेश्वर को देते जरूर है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। There are people who give donations for the ministry, saying we are giving this, we are giving that, and then there is no real love to God. और कुछ लोग जो है जब सेवकाई के लिए कुछ डोनेशन या भेंट को देते हैं तो कहते हैं कि हम तो परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन उनके देने में वो प्रेम नहीं दिखता। But लेकिन if you love God, you cannot keep quiet without giving to God. लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर को देने से कभी चूकेंगे नहीं। There are people who say we love God. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। Yes, that's very good. अच्छी बात है। But how do you say or how do you prove that you love God? लेकिन आप किस तरीके से इस बात को साबित कर पाएंगे कि आप सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं? Only by giving to God. केवल परमेश्वर को अपनी भेंट देने के द्वारा। Only by sacrificing your life, by giving to God, even in the time of poverty. अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा और ऐसे समय में देने के द्वारा जब आप कंगालपन से गुजर रहे हैं। May God bless all of you who are definitely contributing towards the ministry of God out of poverty, out of a very, very difficult situation. You are sowing in the kingdom of God. परमेश्वर आप सबको निश्चित ही रूप से आशीष देंगे जो अपने कंगालपन में और अपने बड़े क्लेश में भी परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं, बो रहे हैं। And the more you give, will be keep reaping, 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 reaping. और जितना अधिक आप बोते चले जाएंगे, उतने अधिक आप कटनी को काटते भी चले जाएंगे। The more you give, the God also will give you more, and you will be full for generations together. और आप जितना आप बोते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको कटनी भी उतनी ही देते चले जाएगा और आपकी पीढ़ी भी आशीषित होते चले जाएंगे। Beloved, the works which you commit is recorded in the presence of God. जो काम आप करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में दर्ज होते हैं। Yes, in giving to God, you may be giving with liberality in spite of your poverty. Definitely, it's recorded in the presence of God in what situation you have given to God. और देने के विषय में जब आप कंगालपन में भी बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोते हो, निश्चित ही परमेश्वर उन सब का लेखा दर्ज करके रखता है। And then he will reward it according to his grace, and then he will meet every need in your life. फिर वो अपने अनुग्रह के द्वारा उन सारी बातों की पूर्ति करता है और आपकी जो भी आवश्यकता है उसको वो पूर्ण रीति से पूर्ण करता है। Once again, we will turn to 2 Corinthians 9th chapter. फिर एक बार हम अध्याय 9 में जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों के 2 Corinthians 9th chapter verse 6. और उसका 6वां वचन हम देखते हैं। It says, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। It's very clear. Economics is very clear. If you are sowing in the kingdom of God, you will also reap more in the kingdom of God. और यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो थोड़ा बोएगा, यदि हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा ही काटेंगे, और बहुत बोएंगे तो बहुत काटेंगे। Wonderful. Never be discouraged in your works of giving to God, and definitely God keeps a record of everything,
and brings reward to you and me. जब आप परमेश्वर को देते हैं, उदास मत होइए। जो कुछ भी आपने दिया है परमेश्वर को, उसका लेखा दर्ज किया गया है। परमेश्वर उसका प्रतिफल निश्चित ही आपको और मुझको देगा। So the sardine stone speaks about the justice of God and then judgment of God. और Revelation 4:3. यस यस। और माणिक्य पत्थर जो है वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। Now we will go to third stone. अब हम तीसरे पत्थर की ओर जाएंगे। It's also in the same verse. उसी वचन में है। And he that sat was to look upon like a jasper. We have seen that jasper is nothing but holiness of God, and then it speaks about clear and crystal. और जैसा हमने यशब के विषय में देखा, यशब और कुछ नहीं लेकिन वो परमेश्वर की पवित्रता है जो पारदर्शिता को दर्शाता है। And then secondly, we also have seen about sardine stone. और दूसरा जो हमने देखा है माणिक्य पत्थर के विषय में। Sardine stone speaks about red color. Sardine stone is always in red color. और जो माणिक्य पत्थर होता है वो लाल सा होता है। And then we have seen that speaks about justice of God and judgment of God. और वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। And then third stone. Yeah, and then third stone. तीसरा पत्थर है। It says, and there was a rainbow round about the throne, and sight like unto an emerald. और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। What is this emerald? ये मरकत है क्या? Emerald is a stone which is in green in color. और मरकत ये जो पत्थर होता है वह रंग में हरा होता है। And then this speaks about God's mercy and God's mercy and grace. और मरकत ये जो पत्थर है परमेश्वर की दया और अनुग्रह को दर्शाता है। First we have seen jasper speaks about clear as crystal. और जैसे हमने यशब के विषय में देखा कि वो पारदर्शी हैं। Sardine is in red in color, which speaks about justice of God. और माणिक्य जो पत्थर है वह दिखने में लाल है और वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। And then third stone is emerald. और तीसरा जो मरकत है वह मेघ धनुष जैसा है। This speaks about green color. जो हरे कलर को दर्शाता है। And then this green color speaks about grace of God and mercy of God. और ये हरा कलर जो है परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। Now see how the whole character of God is explained through the precious stones, indescribable stones. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन वर्णित किए गए पत्थरों के माध्यम से परमेश्वर का चरित्र या परमेश्वर का गुण किस रीति से यहाँ पे प्रकट किया गया है। You know, man's comparison becomes the short of words when we explain God. और जब हम परमेश्वर का वर्णन करने की कोशिश करते हैं वहां पे मनुष्य के शब्द कम पड़ जाते हैं। That is why here it is explained that in the terms of precious, valuable, indescribable stones. और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो तुलना की गई है वह उन कीमती जिसका कोई मोल नहीं ऐसे पत्थरों के द्वारा उसका वर्णन किया गया है। Now, beloved, we need to be thankful for the inspiration of the Holy Spirit. John is full of spirit, as we have seen earlier, that he is bringing such a great truth into our lives. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं
जो यूहन्ना के द्वारा, जिसको पूर्ण रीति से, जो उस समय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसके द्वारा उसने परमेश्वर को हमारे सामने में पूर्ण रीति से प्रकट किया। We need to thank God for these revelations and then use it for our lives and share it to others who do not know and then who are struggling to understand the book of Revelation. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसको उसने हमें मौका दिया कि हम इसको सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके, और जो लोग इसे नहीं समझते उन्हें भी हम इसे समझा सके। So here it says, and there was a rainbow round about the throne. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। What is rainbow? Where did it start actually? Where is the origin of rainbow? ये मेघ धनुष क्या है? इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम स्थान क्या है? We read about rainbow in the book of Genesis. और हम मेघ धनुष के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। Who has given this rainbow? कौन दे रहा है ये मेघ धनुष? You know, whole universe was drowned in a flood, and then whole universe and the whole humanity totally was drowned. और पूरा जगत, पूरी सृष्टि, पूरी मनुष्य जाति पानी में डूब चुकी थी। And then because of flood, everything was drowned and only Noah and his family was saved. और जल प्रलय के कारण सब कुछ डूब चुका था, केवल नूहा और उसका परिवार ही बचा हुआ था। It says in Genesis, once again, we will turn to 8th chapter of Genesis. और इस समय में उत्पत्ति उसका अध्याय 8 निकालते हैं। And then see how this rainbow was given to Noah. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस रीति से नूहा को ये मेघ धनुष दिया गया था। Let's go to 8th chapter. अध्याय 8 में हम आते हैं। And let's read verse 20. और उसका वचन 20 को हम पढ़ते हैं। It says, and Noah built an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. तब नूहा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। Remember, when he is offering the offering unto God, he is not offering any bird, but he is offering clean, all clean, clean, clean. यहाँ पे याद रखिए कि जब वह परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा था, तो ऐसे ही साधारण पक्षियों को उसने नहीं चढ़ाया, लेकिन यहाँ पे सब शुद्ध पशु और पक्षियों को उसने चढ़ाया। Why? Our God is holy God, and then we need to offer holy things unto God. क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए हम जो भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए वो पवित्र बलिदान हो। Whoever you may be, give the holy things unto God. Even your offering, your life need to be holy before God. और जो कोई भी आप क्यों ना हो, आपका जीवन और आपका देना परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। There are people who do all sorts of things and then come and give to God whatever they have. और कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर को ऐसी भेंट देते हैं जो बची कुची होती हैं। You know, if it is holy offering, God will definitely accept it. यदि आपकी भेंट पवित्र है, निश्चित ही परमेश्वर उसे स्वीकार करेंगे। If it is unholy, God will reject it. यदि वो अपवित्र है, परमेश्वर निश्चित ही उसे अस्वीकार करेगा। Our offerings need to be holy unto God. और हमारे भेंट परमेश्वर के लिए पवित्र होनी चाहिए। In Psalm, we read that in 96th Psalm that give the offering of holiness and beauty of holiness, worship Him with the beauty of holiness. भजन 19 में हम देखते हैं कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के सामने में बलिदान चढ़ाओ। So the offering need to be, or your life need to be holy, and the offering of holiness we need to give to God. और हमारा जीवन और हमारी भेंटें परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य पवित्र ऐसी होनी चाहिए।
You know, after offering new things or holy things unto God, और परमेश्वर को नई वस्तुएं या पवित्र वस्तुएं चढ़ाने के बाद God is definitely making a covenant with Noah. परमेश्वर ने नूह के साथ निश्चित रूप से एक वाचा को बांधा। Let's go to 9th chapter of Genesis. 9वें अध्याय के उत्पत्ति के 9वें अध्याय में जब हम जाते हैं, Genesis 9:15. उसका 15 वचन हम देखें। It says, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the water shall no more become a flood to do drowning all flesh. तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। So God is making a covenant here. यहाँ पे परमेश्वर एक वाचा को बांध रहा है। It is the covenant with the whole universe. ये पूरे जगत के साथ एक वाचा, A universal covenant it is called. और इसको जो है संपूर्ण जगत से बांधी गई वाचा कहते हैं। Yeah, now let's go to verse 16. अब 16 वचन की ओर जाते हैं। The bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature, all the flesh that is upon the earth. बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। Beloved, there are seven covenants in the Bible. बाइबल में 7 प्रकार की वाचा के विषय में है प्रियो। If you want, one day we will take up that study, but now our study limits to the book of Revelation. और यदि आप चाहेंगे तो हम उनके ऊपर भी शिक्षा को देंगे, लेकिन अभी हमारी जो शिक्षा इस समय में प्रकाशित वाक्य पर ही टिकी हुई है। So there we see about rainbow in 3rd verse of Revelation 4th chapter. और इस प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 उसके 3 वचन में जिस मेघ धनुष के विषय में हम देखते हैं, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। So verse 16 brings up that, and the bow shall be in the clouds, says God. और वचन 16 ऐसा कहता है कि बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के सदा का की वाचा स्मरण करूंगा। Yeah, so he will see the bow, and then he has made an everlasting covenant with humanity. और परमेश्वर ने उस धनुष के द्वारा पूरे मनुष्य जाति के साथ एक अनंत काल की ऐसे एक वाचा बांधी है। Why he made a covenant like this? उसने इस प्रकार की वाचा क्यों बांधी? Man is not worthy of covenant here. यहाँ पे मनुष्य वाचा के योग्य नहीं है। Man is not worthy of grace here, but God out of his mercy gives grace. यहाँ पे mनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने दया में से उस अनुग्रह को इनको दे रहा है। He makes covenant that God is God of holiness and God is God of high caliber, high quality and crystal and clear, but he is coming to humanity, coming down to him and then making a covenant with them. परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो न्यायी है, वो स्वर्ग से मनुष्य जाति के बीच में उतर कर आता है और वह इस वाचा को मनुष्य जाति के साथ बांधता है। Romans 3rd chapter verse 23 says, और रोमियो उसका अध्याय उसका 3 और 23 वचन इस प्रकार कहता है। 3:23 of Romans says, all have sinned and come short of the glory of God. रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। All have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है। One side we see holy God, other side we see unholy human beings.
एक बाजू में हम पवित्र परमेश्वर को देखते हैं और दूसरी तरफ हम एक अपवित्र जाति को देखते हैं। One side we see indescribable God, and then other side we see a man who is made out of mud. और एक बाजू में हम अवर्णित परमेश्वर को देखते हैं और दूसरे बाजू में हम उस मनुष्य को देखते हैं जो मिट्टी से रचा गया। And then he is not countable at all, but God makes a covenant with the zero and no value, but God makes covenant by coming down to his level of humanity. और ऐसा मनुष्य जिसका कोई दर्जा नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी परमेश्वर नीचे आकर जो है उस मनुष्य के साथ, उस मनुष्य जाति के साथ एक वाचा को बांधता है। We have fallen short of the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं, But he comes to that level. लेकिन वो उस स्तर पर आ जाता है। Jesus said in Luke's gospel about the parable of Good Samaritan. और यीशु ने लूका रचित सुसमाचार में एक अच्छे सामरी का दृष्टांत दिया है। There was a certain man going from Jerusalem to Jericho. एक व्यक्ति है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। No, Jerusalem is on the top of the hill. और यरूशलेम जो है वो पहाड़ पर बसा हुआ है। And then this man is leaving Jerusalem and going down to Jericho, which is downstairs of the hill. और ये व्यक्ति जो है यरूशलेम से अर्थात ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर, यरीहो निचले स्तर की ओर है, वहां पर वो जा रहा है। God has kept us in a higher plane and a higher place, but we don't want that. So we came down to the sinful condition, and then like that traveler, he was going like to Jerusalem, Jericho. We also have come down. और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, लेकिन हम निचले स्थान पर आके इस व्यक्ति के समान जो है, जो यरीहो जा रहा है, पाप के जीवन में जीना चाहते हैं। And then in John 10:10 we read that there is a thief. और यूहन्ना 10:10 में हम एक चोर के विषय में देखते हैं। So that thief could not keep quiet, so he looted everything whatsoever a person, a traveler is having. तो ये जो चोर है वो शांत नहीं बैठा है, ये यात्री जिसके पास जो कुछ भी है उसका सब कुछ लूट लेता है। And then he has not only taken his clothes, he has not only taken everything whatsoever he is having, he has also wounded his body and then made him to a person who loses his life totally and then leaves him half dead. चोरी करने वाले ने केवल चोरी ही नहीं किया, उसका सब कुछ लूटने के बाद उसको ऐसा घात किया और उसको अधमरे रूप में छोड़ दिया ताकि वह उसी स्थान पर मर जाए। Our condition also is made by Satan like that. और शैतान के द्वारा हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही की गई थी। But merciful God cannot keep quiet. लेकिन दयालु परमेश्वर शांत नहीं बैठा। He poured his grace. उसने अपने अनुग्रह को उंडेला। It says in Ephesians 4th chapter verse 4. और वो कहता है इफिसियों अध्याय 4 उसके 4 वचन में। It says we are the children of wrath, but he poured his grace upon us. हम तो क्रोध की संतान थे, लेकिन उसने अपने अनुग्रह को हम पर उंडेला। It says he is rich in mercy, he is rich in grace. वह पे ऐसा लिखा है, वह दया का धनी और अनुग्रह का धनी है। If I look at my life, यदि मैं मेरे जीवन की ओर देखूं, I am rich in anger. मैं तो क्रोध में धनी हूँ। When I get angry, everything becomes upside down. और यदि मैं क्रोधित हो जाता हूँ तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। I myself become upside down. और मैं भी ऊपर नीचे हो जाता हूँ। Last week one brother came and he was saying about his wife.
एक भाई पिछले हफ्ते में आया और अपनी पत्नी के विषय में कहने लगा। He was saying, whenever my wife gets angry, वो कहने लगा, जब भी मेरी पत्नी क्रोधित होती है, she doesn't know what she is speaking. उसे मालूम ही नहीं होता कि वो क्या बोल रही होती है। Why? क्यों? Why? Anger is so vehement that you do not know what you are speaking when angry comes. क्योंकि जब क्रोध आता है या गुस्सा आता है तो खुद को ही समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। One sister was saying, if my husband gets angry, एक बहन कह रही थी कि यदि मेरे पति को गुस्सा आ जाए, he will break all the TV, he will break fridge, he will break everything in the house. तो वो घर के टीवी हो या फ्रिज हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबको तोड़ डालता है। Beloved, anger, you do not know when anger comes and then everything destroys. मेरे प्रियो, जो गुस्सा है आप नहीं जानते ये कब आएगा, लेकिन जब ये आता है सब कुछ नाश कर जाता है। But here we see a merciful God. लेकिन यहाँ पे हम एक दयालु परमेश्वर को देखते हैं। Merciful God who is rich in mercy and then pours his mercy upon us. दयालु परमेश्वर जो है वह अपनी दया को दर्शाता है और हम पर अपने दया की वर्षा करता है। And then when he pours it, then he will not remember our mistakes, our sins, and then he will lift us up from that situation. और जब अपनी दया को हम पर उंडेलता है, उस समय में वह हमारी गलतियों को, गुनाहों को स्मरण नहीं करता, उसको वो धो डालता है और हमारी परिस्थितियों से हमको बाहर निकालता है। So rainbow definitely speaks about mercy of God. और इसलिए मेघ धनुष वह निश्चित रूप से परमेश्वर की दया के विषय में बताता है। The precious stone of emerald is speaking and then speaking about the mercy and grace of God. और इसलिए जो मरकत, ये जो बहुमूल्य पत्थर है, वह निश्चित रूप से परमेश्वर की दया और अनुग्रह को दर्शाता है। How great God we have. कितना महान परमेश्वर हमारा। A God who shows mercy and then lifts us up from the situation where we have fallen down. और हमारा परमेश्वर अपनी दया दिखाकर हमें उस स्थान से ऊंचा उठाता है जिसमें हम गिर गए हैं। And then lifts us up and then makes us holy for his glory. और हमें ऊंचा उठाकर वो हमें अपनी महिमा के लिए पवित्र करता है। Let's go to the book of Romans, very good book which speaks about justification by faith. और हम रोमियो की पत्री में जाते हैं जहां पे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में कहा गया है। Romans 5th chapter. रोमियो अध्याय 5। There we read about God's love. वहां पे हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। 5th chapter verse 5. अध्याय 5 का वचन 5। It says, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Because our heart is full of bitterness and it is full of sin and then sinful things. क्योंकि हमारा हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है और पापमय वस्तुओं से भरा हुआ है। There are almost 13 sins which are listed by Jesus in Mark's Gospel and in the Gospels, how the things which come from the heart defiles man. और मरकुस रचित सुसमाचार में ऐसे 13 पापों का वर्णन मरकुस ने किया हुआ है और दूसरे सुसमाचारों में भी लिखा गया है कि कैसे ये पाप मनुष्य के मन को अशुद्ध करते हैं। Now let's read Romans 5:6. और हम रोमियो अध्याय 5 उसका 6वां वचन पढ़ते हैं। It says, for when we were yet without strength, in due time Christ died for us the ungodly. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा।
See the mercy of God. He died when we were yet sinners. यहाँ पे हम देखते हैं कि वह भक्तिहीनों के लिए मरा। In due time, Christ died for the ungodly. और यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्मी परमेश्वर अधर्मी लोगों के लिए मरा। And then he died in due time, not one step forward or not one step backward. और ना ही वो पहले उनके लिए मरा और ना ही वह उसके बाद उनके लिए मरा। In the right time, he died for you and me. वो सही समय पर आपके और मेरे लिए मरा। That is why it says, in due time, Christ died for the ungodly. और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह अभक्तिहीनों के लिए सही समय पर मरा। If you think you are righteous, Jesus did not die for righteous people. यदि आप सोचते हैं कि आप धर्मी व्यक्ति हैं तो यीशु धर्मी लोगों के लिए नहीं मरा। It says in Luke 19th chapter verse 10, Jesus came to search that which is perished. इसलिए लूका उसके अध्याय 19 में लिखा हुआ है कि यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है जो He नाश हो गए came थे। to search the perished and the lost ones. वह नाश होने वाले और खोने वालों को ढूंढने के लिए आया है। That is why only one who accepts that he is lost and perished will be eligible for the grace of God. जो लोग इस तरीके से अपने आप को स्वीकार करते हैं कि वो नाश हो रहे हैं या वह खोए हुए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार योग्य होते हैं। And he died for sinners. If you accept that you are a sinner, definitely there is salvation through the blood of Jesus Christ. और वह पापियों के लिए मरा है। यदि हमें स्वीकार करते हैं कि वह मेरे लिए मरा तो वह निश्चित रूप से हमें स्वीकार करता है। Now Romans 5th chapter verse 7 says, और रोमियो अध्याय 5 उसका 7वां वचन इस प्रकार कहता है, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। But 8th verse says, 8वां वचन इस प्रकार कहता है, God commendeth his love toward us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट करता है, While we were yet sinners, Christ died for us. कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। It says in Psalm 51, भजन 51 में इस प्रकार से वो कहता है, verse 6, while I was in the mother's womb, I am a sinner. वो कहता है कि जब मैं अपने माता के गर्भ में ही था तो मैं पापी था। So I was born in sin, I was conceived in sin, and my life is a sinful life. मैं पाप में जन्मा, मैं पाप के गर्भ में रहा और मेरा पूरा जीवन पाप में है। Who can save me from this sin? कौन मुझे इस पाप से छुड़ा सकता है, बचा सकता है? Only Christ, who showed mercy and grace and poured his grace upon us, he can save us. केवल मसीह जो अपने अनुग्रह और अपनी दया को हम पर उड़ेलता है, केवल वो ही हमें बचा सकता है इस पाप से। Today let us turn to him saying, Lord, I am sinful. आइए हम उसकी आइए हम उस परमेश्वर की ओर देखें और कहे, प्रभु मैं पापी हूँ। Let us turn to the Ephesians 2nd chapter. आइए हम इफिसियों उसके दूसरे अध्याय की ओर जाए। 2nd chapter of Ephesians verse 2. इफिसियों अध्याय 2 उसका वचन 2। It says, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है।
Now let us go to verse 1 in the same chapter. और पहले वचन में देखते हैं उसी अध्याय के, And you have been quickened who were dead in trespasses and sins. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, Who are we by birth? जो जन्म से ही पापी थे। We were dead in trespasses and sins. हम अपने अपराध और पापों में मरे हुए थे। Once one pastor was preaching on the people who are dead. और एक बार एक पासवान जो प्रचार कर रहे थे जो लोग मर गए थे उनके विषय में, Then he was also speaking on having burden for the people who are dead in trespasses and sins. और वो इस विषय में भी प्रचार कर रहे थे कि जो अपने पाप और अपराधों में मर चुके थे उनके विषय। Then one young man came and met him and then said, your message was very good. एक जवान व्यक्ति उनके पास और कहने लगा, आपका संदेश बहुत ही अच्छा है। Oh, and then he said, you see, you spoke that the people who are dead in trespasses and sins will not have any burden at all. और आपने ये प्रचार किया कि जो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए हैं उनका कोई बोझ नहीं होता। What is this burden? ये बोझ है क्या? And then that pastor answered him, उस पास्टर ने उसको उत्तर दिया, take a dead body एक मृतक शरीर लो and keep upon him 1 quintal weight upon him. उसके ऊपर तुम 1 क्विंटल का, 40 किलो 100 किलो का एक बोझा रख दो। And then can he shout, oh, it's very heavy, heavy, heavy. क्या वो इस तरीके से चिल्लाएगा कि अरे ये तो बहुत ही भारी है, बहुत ही भारी है? Then put 200 kg weight upon him. उसके ऊपर और 2 किलो का और वजन रख दो। 200 का 200 का और 200 किलो का और वजन रख दो। अरे मेरा चार्जर लाओ। He can't shout anything of that sort. और वो इस तरीके से कुछ भी प्रतिक्रिया या चिल्ला नहीं सकता। Why? Because he is a dead person and he doesn't know what is the burden as such. क्योंकि वह एक मरा हुआ व्यक्ति है और इस प्रकार के बोझ को उसे मालूम नहीं है कि बोझ क्या होता है। In our churches there are so many dead people who doesn't know what is burden at all. और कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते कि बोझ का अर्थ क्या होता है। Only the people who accept Christ will know the value of a soul and they start crying and weeping. और केवल वो ही जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है वही इसकी कीमत को जानेंगे और वो उसके लिए आंसू बहाएंगे। Now once we had a healing crusade in Kurnool, that is in Andhra Pradesh. और एक बार हमारा जो महासभा जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में थी, then we asked them, if you have any question, please put it in the box and then we will answer that. और हमने उनसे कहा आपके जो भी प्रश्न होंगे उस बॉक्स में डाल दीजिए, हम सब आपके पश्चात हम इसके प्रति उत्तर आपको देंगे। One person wrote a question like this. एक व्यक्ति ने इस प्रकार का प्रश्न लिखा, Why Christians when they kneel down they are weeping and crying and they are praying and praying with tears? क्यों मसीह लोग जब वह घुटनों पर आते हैं वह रोते चले जाते हैं और प्रार्थना में आंसू बहाते चले जाते हैं? Then we answered them. हमने उनको ऐसा उत्तर दिया, A real person who accepted Christ knows the value of a soul. That is the reason a person to bring soul from Satan and clutches of Satan and from hell to heaven, he cries and prays before God. और हमने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया कि जो आत्मा शैतान के जकड़न में जकड़ी हुई है
उसको उसके चंगुल से बाहर निकालने के लिए वह प्रार्थना में रोता है, बोझ के साथ रोता है, ताकि उसको उससे छुटकारा मिल सके। If you are a true child of God, you cannot keep quiet. You will definitely weep and pray. यदि आप परमेश्वर के सच्चे बेटे या बेटी हैं तो आप शांत नहीं बैठेंगे, आप निश्चित रूप से ऐसी ही प्रार्थना करेंगे। There was a man called George Whitefield. और एक व्यक्ति जिनका नाम जॉर्ज व्हाइटफील्ड था, He was going to with his mother to market. वो अपनी माता के साथ बाजार गया था He saw many people drinking. और उसने देखा कि कई लोग जो है वो शराब पी रहे हैं। He saw other people going to cinema theaters. वो देख रहा है कि कुछ लोग जो है वो सिनेमा देखने जा रहे हैं। He went to the roadside and he started sobbing and shedding tears. और वह रोड के एक किनारे पर वह खड़ा हो गया और वह आंसुओं से भर गया। And then his mother started asking, George, what happened to you? Why are you weeping? उसकी मम्मी उससे पूछने लगी कि हे जॉर्ज, तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया है तुझको? And then George said, Mama, I cannot see people rushing into hell, going to the filthy pictures, and then defiling their thoughts, and then unholy, becoming unholy day by day. माँ, मैं उन लोगों को जो अपने जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं और अपने जीवन को इन पिक्चरों के माध्यम से वो अपने आप को पाप में डाल रहे हैं, उनको मैं नरक जाते हुए नहीं देख सकता। मेरी माँ, Beloved, today we need that kind of people who are filled with the burden and then praying day and night for Christ. मेरे प्रियो, आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस प्रकार से बोझ से भरे और मसीह के सामने में वह दिन रात प्रार्थना में लगे रहे, ताकि इन लोगों को उससे निकाल सके। हेलो, Sorry for the disturbance. और माफ कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम था। Anyhow, we will continue our word of God. हम हमारे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। Says in Ephesians 2nd chapter, and you hath quickened who were dead in trespasses and sins. और जिस प्रकार से पहले वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Beloved, we are dead in trespasses and sins. मेरे प्रियो, हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। But next verse says, yes, quickened. God has quickened us from the death and from our deadly condition. लेकिन अगला वचन अगले पद में अगले भाग में ऐसा लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो पाप और अपराधों में मरे हुए थे। ऐसी परिस्थिति In verse 4 we read that God, who is rich in mercy, poured his rich of mercy upon us.
और चौथा वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, He poured his mercy for his great love wherewith he loved us. अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। And verse 5 says, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. और पांचवें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। Emerald speaks about grace of God. और मरकत जो है परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात करता है। And then he has poured his grace upon you and me to save you and me from the judgment of God, from the wrath of God. और इसीलिए उसने अपने अनुग्रह को आपके और मेरे ऊपर उंडेला ताकि हम परमेश्वर के न्याय से हम छूट जाए और उससे हम बचाए जाए। And then it says, by grace ye are saved. It is not by our merit, it is not by our good works, it is not by anything else, but by grace ye are saved. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, या हमने ऐसी कोई कीमत नहीं चुकाई, हमारा उद्धार अनुग्रह ही से हुआ है। Everything Jesus paid it on the cross. सब कुछ यीशु मसीह ने हर एक का दाम क्रूस पर चुकाया है। He shed his blood on the cross and he did not spare even a single drop out of his body. और उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है, उसने एक भी अपने शरीर में लहू को नहीं बचा के रखा। And then verse 6 says, और छठा वचन इस प्रकार कहता है, He hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So he made us sit in heavenly places. और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। If you read one of the book by Watchman, he named this Ephesians as sit, stand and walk. यदि आप वॉचमैन नी की एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है सिट, वॉक एंड स्टैंड, and Christian life starts with sitting. और मसीह जीवन की शुरुआत होती है बैठने से। It is not by your effort and my effort we get righteousness. और आपके और मेरे परिश्रम के द्वारा हमें धार्मिकता नहीं प्राप्त होती है। It is not by our efforts, it is not by our righteousness, it is not by our own effort or works which we do, we receive the righteousness of God. और ना ही हमारे कर्मों के कारण, ना ही हमारी स्वयं की धार्मिकता के कारण, और जो काम हम करते हैं उसके कारण हमें धार्मिकता प्राप्त होती है। It is through the grace of God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त। It is through the mercy of God. ये केवल परमेश्वर की दया के द्वारा में प्राप्त होती हैं। Purely through the mercy of God. So whenever I stand in the presence of God, I humble myself, cry before God, saying, "Oh Lord, I am not worthy to be in your presence." और जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में खड़े रहने के योग्य ही नहीं। No, even from my mother's womb, I am a sinner, Lord. प्रभु, अपने माता के गर्भ ही से मैं पापी हूँ प्रभु। And only you can save me. और केवल तू ही प्रभु मुझे बचा सकता है। When I accepted Jesus in my young age, और मैंने अपने युवा अवस्था में यीशु मसीह को स्वीकार किया। at the age of 21, I entered into full-time ministry. और 21वें साल में मैं पूर्णकालीन सेवकाई में आया। Why? क्यों? Just to tell people that grace of God is available, and once the grace of God goes and then grace period finishes, there is no other opportunity, there is no other time to turn to God. लोगों को ये बताने के लिए कि ये अनुग्रह का युग है, क्योंकि जब अनुग्रह का युग चला जाएगा तो हमारे पास वो समय ही नहीं बचेगा कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ सके।
Today we are making efforts, even though it is costly, to pay for Zoom and then to pay the things which are needed. But we want to reach this message of grace, that God is gracious and He is merciful. इन दिनों में इस संदेश को देना जूम के माध्यम से काफी महंगा है, लेकिन हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से परमेश्वर की दया और अनुग्रह का संदेश जो सबकी आवश्यकता है लोगों तक पहुंचे। You know, it is beyond our limit to pay all these expenses and then bring out this message. But God really has the full grace which is available for you and me. And we need to understand only the grace can save us, and we can be redeemed from our sinful condition. और ये बहुत ही कठिन है कि हम इस अनुग्रह के संदेश को आप तक और इतने खर्चों को हम पूरा कर पाए, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो अपने परिपूर्णता से उन सारी बातों को पूरी करता है ताकि हम सब अपने उस पाप में और अपराध में परिस्थिति से बाहर निकल सके। God's grace be upon each of us that we may become mighty in the hands of God. परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर है ताकि हम परमेश्वर के हाथों में एक सामर्थी व्यक्ति बने। Let us pray and commit our lives to the Lord, saying, Lord, here am I commit my life unto you. और प्रभु से प्रार्थना करें और कहे कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। So to turn to Revelation, और अब हम प्रकाशित वाक्य की ओर फिर आते हैं। 4th chapter, अध्याय 4 and then verse 3. उसका 3रा वचन says, and he that was looked upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक के सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। Definitely, emerald is definitely a stone which tells about God's character of grace of God. और निश्चित रूप से मरकत, ये जो बहुमूल्य पत्थर है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के उस चरित्र को जो अनुग्रह का है वह दर्शाता है। Grace of God comes to us, and then mercy of God saves us from every sinful deed and from every judgment, from every dreadful condition. और परमेश्वर की दया हम पर उतरती है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें हर एक उस पाप के द्वारा होने वाले न्याय से हमको बचाता है। May God's grace be upon each of us. परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हो। And definitely may our God bring salvation which is totally costing the whole personality of God. और वो उद्धार जिसके लिए संपूर्ण परमेश्वर के व्यक्तित्व को उसने दे दिया है वो हम तक पहुंचे। We see that God is definitely a God of sardine, a God of jasper, a God of emerald. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो यशब, माणिक्य और मरकत जैसा दिखने वाला परमेश्वर है। A God who gives holiness and makes us holy. A God who brings sardine, that is justice of God, and then brings us this justice in our lives. A God who is having a covenant mercy and grace for you and me, and makes it available that we may accept this God. हमारा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, हमें जो पवित्र करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो न्याय परमेश्वर है, हमारे जीवन में न्याय और धार्मिकता को लेकर आता है। हमारा परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, जो हमारे साथ एक वाचा को बांधता है और अपने अनुग्रह से हमको बचाने वाला परमेश्वर है।
Today, may God's grace continue to be upon each of us. आज परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हम सब पर बना रहे। As we turn to God, जैसे हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, may our hearts be full of thanks for the God who is like jasper. और हमारा हृदय उस परमेश्वर की ओर जो उस यशब के समान है पूर्ण रीति से धन्यवाद के साथ भर जाए। A God who gives us holiness and He is holy and He accepts us and expects us to be holy. और हमारा परमेश्वर जो पवित्र है और जो वह पवित्र करता है और वो हमसे पवित्रता की अपेक्षा करता है। Then he is also sardine, a stone like sardine. और जैसा वो उस मानिय के पत्थर सा है। Sardine speaks about justice. और मानिक के जो है वह न्याय के विषय में बात करता है। Sardine speaks about judgment. और मानिक के जो है वो धार्मिकता के विषय में बात करता है। God's character of justice and judgment is revealed in this precious stone. और इस बहुमूल्य पत्थर में परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के न्याय को दर्शाया गया है। And then there was a rainbow round about the throne. और उस सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष है। And then we have seen that in sight like unto an emerald, which speaks about mercy of God. और फिर हमने मरकत सा एक मेघ धनुष देखा है जो परमेश्वर की दया को दर्शाता है। And then God definitely pours His mercy upon us and gives us His glory. निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी महिमा को हम पे उंडेलेगा और अपने अनुग्रह से अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करेगा। So you have next assignment. अब आपके लिए एक अगला असाइनमेंट है। What is the assignment? क्या है वो अगला घर कार्य? Explain these 3 stones or precious stones which are compared to God and explain God's character. और आपका जो तीसरा घर कार्य है वो ये है कि ये जो 3 कीमती पत्थर है जो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं उसके विषय में लिखना। And then maybe within 2 days you can take time to whatever you heard, write down and then explain these precious stones and then how that explains the precious character of God. और ये 2 दिन आपके पास है, आप इसको सुनिए, इसको लिखिए और फिर ये जो कीमती पत्थर है वो कैसे कीमती परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं उसको बताइए। And then write it and then send it to us that we may grade it. और आप इस 2 दिनों में उसको लिखकर हमें भेजिए ताकि हम इसके अंक आपको देने पाए। And then when you send it, we will definitely grade it. And then you will also get at the end of the course the whole grade and then how much you have scored. और आप उसको लिखकर हमें भेजिए, हम उसको जांच कर उसमें आपको ग्रेड देंगे और इस कोर्स के इस अभ्यासक्रम के अंत में आपको दिखाई देगा कि आपने कितना अंक इसमें प्राप्त किए हैं। Shall we close our eyes and look God in prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for your grace which is upon us. धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो हम पर है। Thank you for explaining us the 3 characteristics of God through these stones which are precious, indescribable and very high in quality. धन्यवाद प्रभु जी, इन कीमती बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा आपने हमें परमेश्वर के उन 3 चरित्रों को प्रभु जी जो अवर्णित है प्रभु जी, जिनकी कोई कीमत नहीं है, उसे आपने हमें हमारे सामने में आपने प्रकट किया। We are really blessed people to have holy God as our God.
और हम धन्य लोग हैं प्रभु कि हमारे पास एक धन्य ऐसा पवित्र परमेश्वर है। We are blessed people to have our God as a God of justice and God of judgment. और हम प्रभु ऐसे धन्य लोग हैं जिसके पास वो न्याय और धर्मी परमेश्वर है। We are blessed people to have a God of mercy and a God of justice. हम वो धन्य लोग हैं हमारे पास जो अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। You are definitely God who has caliber and character of mercy and grace. प्रभु तू वो परमेश्वर है जिसके पास वो योग्यता है जिसमें दया और अनुग्रह है। Thank you for shedding abroad your grace upon us. तो वो धन्यवाद देते हैं कि अपने अनुग्रह को हम पर तूने उंडेला। Continue to glorify your name and continue to use us for your glory. लगातार प्रभु तू हमारे द्वारा अपनी महिमा ले और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। We pray that you may continue to bless each one who gathered here right now. हम प्रार्थना करते हर एक के लिए जो इस समय में यहाँ पे प्रभु जी एकत्रित है। May your hand come upon each one of them and give them a special grace in this period, O Father. प्रभु इस समय में प्रभु जी तेरा हाथ उन पर आए और तेरा विशेष अनुग्रह हर एक पर हो। Continue to glorify your name in and through their lives. लगातार प्रभु उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा को ले। Bless their families. उनके परिवारों को आशीषित कर। Bless each and every situation and deliver them for your glory. प्रभु उनकी हर एक परेशानियों से प्रभु जी तू उन्हें छुटकारा दे और अपनी महिमा उनके द्वारा ले। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आपके सम्मुख में चढ़ाते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now over to Brother Harshal. Yes. Amen.